but we appreciate his presence. In addition to that, we also appreciate the presence of a lot of people who are with us. And in just 2-3 minutes, we will be formally starting this. In this short waiting time, I would request all the participants to place their introduction into chat box with their name, qualification, their mobile number, their email address, so that we can contact them for all future our seminars and free webinars, as well as certain commercial items. We hope you will shortly do so. And you can also forward our Zoom message with the Zoom link to your colleagues and other groups as soon as possible so that maximum people can benefit. We are thankful that in every minute, participants are increasing. मेरे सामने we are thankful to Mr. Ashfaq Tola Sahab, who is with us to show your good self the importance of attending 2 days
federal and 3 provinces Finance X workshop, which is going to be held on 7 July and 9 July, wherein several panelists, including Mr. Ashfaq Ullah Sahab, will join. He is in an urgent meeting, but on our request, he agreed to grace the occasion. Now I request Mr. Fatullah Sahab to address this seminar or a short workshop. Ji Ashfaqullah Sahab, proceed. जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Thank you Asif bhai, thank you team Tax Excellence, and congratulations on hosting this such brilliant webinar which is free of cost, and you are distributing knowledge, you are disseminating knowledge, and I think this is more important in this world. Due to COVID, when the virtual conferences, virtual webinars, and we are holding such meetings on virtual basis, and this is good, I think. And I know for sure that the conferences, the webinars of Tax Excellence are par excellence, and they are very good. And in my humble view, they are knowledge gaining, and I think you are doing a wonderful job. And in my humble view, you should carry on these good work which you are doing. मैं आपको, आपकी टीम को और ये जो हमारे इस वक्त जो व्यूअर्स हैं उन सबको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई अच्छी नॉलेज मिल सकती है on account of these amendments which have been made in the taxation system of Pakistan, excluding Sindh ने इस मरतबा कुछ शायद मेरा ख्याल है नहीं किया, बाकी बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के, एंड देन फाइनली आपका जो फेडरल बजट था कल आपका परसों आपके पास आ भी गया है, अमेंडेड फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट आपका बनने वाला है और साइन होके आ जाएगा. तो वही चीज़ हम देख रहे थे अभी इस्लामाबाद में बैठ के. एंड इन माय हम्बल व्यू ये अच्छी एक आपके लिए मेरा ख्याल है नॉलेज बेस्ड है. और आसिफ भाई हमेशा माशाल्लाह सबसे फ्रंट पे ये रहते हैं और फोर फ्रंट पे रहते हैं. मेरा ख्याल है आसिफ भाई कैरी ऑन. थोड़ा सा मुझे बिकॉज ऑफ द मीटिंग मैं कहीं से उठ के किसी और के लैपटॉप पे ये बात भी कर रहा हूँ अभी आपसे. तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर कभी सेमिनार में मौका मिला तो आएंगे आपके पास. और प्लीज़ carry on the good job you are doing. I think I can see Nasir Gulzar Saab, Amir Javed Saab, and they all are Shamir Harun. So I think you have got a very good panelist, Mohammad Awais. ये सारे अच्छे पैनलिस्ट हैं आपके, बड़े नॉलेजेबल हैं और मैं तो तिफले मकतब हूँ, सीखता हूँ आप सबसे और इंशाल्लाह सीखता रहूँगा. मुझे प्लीज़ इजाज़त दें. मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं अटेंड करता, बट अनफॉर्चुनेटली कोई एक मीटिंग ऐसी है कि मैं उठ के बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बी डेफिनेटली विल बी विथ यू फॉर द एंटायर सेशन, एंड इंशाल्लाह विल गेन सम नॉलेज आउट ऑफ योर brilliant exposure and excellent knowledge. Thank you very much, sir. Thank you अशफाक़ुल्लाह साहब कि आपने इतनी कीमती मीटिंग को टेम्परेरी डेफर किया और हमारे साथ यहाँ शामिल हुए. You may be aware कि अशफाक़ुल्लाह साहब एनुअली कमेटी के चेयरमैन हैं, ICAP के फिस्कल लॉ कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, और इसके अलावा इस वक्त जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी जो गवर्नमेंट रिलेशन से रिलेटेड है एज वेल एज इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसको भी चेयर कर रहे हैं. इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट वक्त में नहीं बता सका. शर्तुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ दीगर अहम लोग, नासिर गुलजार साहब फिस्कल लॉ कमेटी के, फिर शमीर हारून साहब और दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं. मैं उनका भी मशकूर हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए और मज़ीद शामिल रहेंगे. और जितनी देर अशफाक़ुल्लाह साहब रहें, वी आर वेलकम कि वो जितनी देर इजीली रह सकें हमारे साथ रहें. और आज के इस प्रोग्राम का असल मकसद बताना मकसूद है कि तकरीबन रफली अबाउट हमने कैलकुलेट किया तो 250 प्लस अमेंडमेंट्स हैं अंडर दी फेडरल लॉ और फाइनेंस एक्ट के नतीजे में जो अमेंडमेंट्स आई हैं. रिजर्विस फाइनेंस बिल वो अबाउट 30 हैं.
और इसके अलावा प्रोविंशियल सेल्स टैक्स को इवेल्युएट किया हमने, पंजाब का, केपीके का और बलूचिस्तान का, तो उसमें रफली अबाउट 90 अमेंडमेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 350 प्लस अमेंडमेंट्स जो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और बहुत सारे आपके सेमिनार में क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर्स नहीं मिले होंगे पॉसिबली, और जाहिर है जिन जिन ने प्रोग्राम किया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ पोस्ट बजट, चाहे वो आई कैप हो, चाहे वो ACCA हो, चाहे वो ICMA हो, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पोस्ट बजट वर्कशॉप 3 दिन का किया, 2 दिन जो है फेडरल का किया और 1 दिन का प्रोविंस का किया। और उस वक्त जो है वो बलूचिस्तान का बिल ट्रेस नहीं हो सका था, बलूचिस्तान का बिल हमें यस्टरडे ट्रेस हुआ है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो 2 दिन में अब इनको कवर कर लेंगे, जिसमें से पहले दिन विच इज़ ऑन 7th हम इंशाल्लाह डायरेक्ट टैक्स करेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम की अहमियत के हवाले से, ये प्रोग्राम क्यों अहम है आपके लिए, वो समझना ज़रूरी है। आपने यकीनन बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे और अब हम देखते हैं कि इस वक्त ये क्यों अहम है आपके लिए। तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करूंगा जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आसिफ हारून साहब का, कि कुछ पोर्शन हमने उनकी परमिशन से इस प्रेजेंटेशन में लिए हैं ताकि आपको हाईलाइट की जा सके जो उन्होंने आई कैप के फ्लोर पे की थी, और कुछ हमने अपनी एडिशन की हैं। तो वी आर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन, जो कुछ पार्ट हमने लिया है आसिफ हारून साहब की प्रेजेंटेशन से और कुछ पार्ट हमारा अपना इनोवेटिव मैटर है जो आपके लिए अहम है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि मुसलसल पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। वी आर जस्ट सेटिंग द शेयरिंग। हम ताकि साउंड किसी को डिस्टर्ब नहीं करे किसी दूसरे की, तो हम जो है वो तमाम लोगों के साउंड जो है वो म्यूट कर रहे हैं ताकि सब लोग इजीली सुन सकें। अगर हम थोड़े से नंबर गेम की बात करें तो बजट 2019-2020 एक्सपेक्टेड 3.9 मिलियन था, और अभी रिसेंटली यस्टरडे आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि ये एक्सपेक्टेड बजट अचीव हो चुका है और 4 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने रिसीव कर लिए हैं। यस्टरडे नाइट की न्यूज़ चैनल पे चली थी। तो ये 4.9 मिलियन जो है 3.9 मिलियन, ये 4 ट्रिलियन पे आ गया है। अब मुझे पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए या मेरी आपकी जेब से गया है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। ये आप बेहतर, आपकी दिल की आवाज़ जो भी है उसको समझ लें। लेकिन इसके अंदर नेचुरली बहुत सारे प्रोफेशनल्स का हाथ है इसको अचीव करने में, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का भी हाथ है। तो उस लिहाज से मुबारकबाद, FBR को मुबारकबाद हमें देनी चाहिए कि ठीक है हमारी जेब से गया, लेकिन मुल्क के लिए अगर ये सही तरह से इस्तेमाल हो बगैर करप्शन के, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। अल्लाह करे कि बेहतर नॉन करप्ट पीपल इन अ प्रॉपर वे इसको इस्तेमाल करें जो भी पैसा गवर्नमेंट को आता है। अब इस साल का जो बजट है वो 4.9 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि 1 ट्रिलियन का इजाफा है विच इज़ 27%। इसको अगर हम ब्रेकअप करें एनालिसिस, तो इनकम टैक्स के 419 बिलियन, सेल्स टैक्स के 492 बिलियन, कस्टम्स में 94 बिलियन और फेडरल एक्साइज में 50 बिलियन। तो इस तरह से 1055 बिलियन की टोटल अमाउंट है
जो ब्रेक कर रहे हैं। और हम अपने वर्कशॉप में फोकस 3 एरिया को करेंगे, कस्टम्स को फोकस नहीं करेंगे, बाकी 3 एरिया को फोकस करेंगे, और इसके अलावा 3 लॉज जो प्रोविंसेस के हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। जो की चैलेंजेस अंडर द सर्कमस्टांसेस हैं वो ये है कि कोविड की सिचुएशन में क्या ये बजट अचीव होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक खुशखबरी गवर्नमेंट के लिहाज से बात करूं तो अगर गवर्नमेंट ने अप्रैल, मई और जून कोविड सिचुएशन थी, और वो कोविड क्लियर कट सिचुएशन थी इसलिए कि मार्च 24 से लॉकडाउन सिंध में लग गया था और बाकी जगहों के ऊपर मुख्तलिफ टाइम से लगा। सिंध में लॉकडाउन जो है मार्च 24 से लग गया था, और बाकी मुल्क में भी अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज अप्रैल में लग गई, अप्रैल या मिड अप्रैल में सब जगहों में लग गया था, लॉकडाउन हो चुका था। तो उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट ने कलेक्शन की है, और उन शहीदों को भी सलाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और उन टैक्स एडवाइजर को भी सलाम कि उस कोविड सिचुएशन में अपने क्लाइंट्स की जिन्होंने असेसमेंट करवाई और गवर्नमेंट के इन बजट्स को अचीव करवाने में शुहदा का रुतबा इख्तियार किया। उम्मीद है वो सारे रिस्क हलाल के लिए काम कर रहे थे और रिस्क हराम यानी रिश्वत के लिए काम अल्लाह न करे न कर रहे थे। फिर इसके अलावा अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो कोई मटीरियल चेंज नहीं है नंबर ऑफ फिगर कलेक्शन में, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 ट्रिलियन कलेक्ट हुआ है यस्टरडे की न्यूज़ के मुताबिक। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शन जो है टोटल कलेक्शन वो कंप्राइज करती है 59%, यानी सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन है वो कंप्राइज करती है 59%, और इसके अंदर इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स को भी इनडायरेक्ट तस्वर कर लें कि वो भी ऑटोमेटिकली हम एज ए विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट, हमारे क्लाइंट्स बहुत सारे विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट या जो कंपनी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कलेक्ट करती हैं, उसको भी अकाउंट फॉर कर लें तो 80% की जो टोटल अमाउंट है वो टोटल बजट का होती है। यानी गवर्नमेंट ने अगर 4 ट्रिलियन की अचीवमेंट की है तो उस 4 ट्रिलियन में से 80% जो है वो रफली स्पीकिंग ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी 20% जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट की एफर्ट्स यानी असेसमेंट के नतीजे में, चाहे उसके अंदर वो पार्टली वो असेसमेंट भी हो या वो कलेक्शन रिकवरी भी हो जो बैंक अकाउंट फ्रीज करने के नतीजे में जबरदस्ती ले लिए गए हों। देयर आर सर्टेन चांसेस बट आई एम नॉट सेइंग कि हर केस में ये हुआ होगा, लेकिन धार है गवर्नमेंट चूंकि रिसीट बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करती है तो ये जो 4 ट्रिलियन है वो रिसीट बेसिस के ऊपर है गवर्नमेंट के लिहाज से। लेकिन इसके अंदर जो रिफंड पेएबल हैं वो जाहिर है इसके अंदर वो भी रेवेन्यू का पार्ट है इस वक्त टेक्निकली इस 4 ट्रिलियन के अमाउंट में, लेकिन कितना एक्चुअली पेएबल है वो जाहिर अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को एग्जैक्टली वो नंबर्स आज के पार्टिसिपेंट्स में से कुछ लोगों को शायद पता हो, लेकिन जाहिर है वो भी अच्छा खासा बड़ा नंबर है जो रिफंड गवर्नमेंट को देने हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर रिफंड की अकाउंटिंग नहीं है इसलिए वो नंबर पूरी तरह से फिगर पब्लिक में इन अ पब्लिक शेप प्रॉपरली नहीं आती, सिवाय एपीटीएम वगैरह जब अपनी बात करते हैं तो उस सूरत में कुछ फिगर्स हमें मिलती हैं कि इतने रिफंड इनके पेंडिंग हैं। जो की चैलेंजेस अगर हम बात करें कि 55% सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड एट इंपोर्ट स्टेज, और उस इंपोर्ट स्टेज की बात करें तो 32% जो है इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो इंपोर्ट होती हैं वो पीओएल प्रोडक्ट्स होती हैं, और पीओएल प्रोडक्ट्स लॉकडाउन सिचुएशन में, इकोनॉमिक स्लोडाउन की सिचुएशन में ये कम होंगी, लेकिन सरप्राइजिंगली लास्ट 1 or 2 मंथ्स में पीओएल इतनी इंपोर्ट नहीं हुई और गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगाई थी पीओएल इंपोर्ट्स के ऊपर के लोकल पीओएल पड़ा हुआ था, लेकिन उसके नतीजे में कुछ नुकसान भी हुए कि वो पाबंदी कुछ ज़्यादा अर्से रह गई जिसकी वजह से 25 रुपये प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, जिसके ऊपर पूरी कौम शोर मचा रही है, और उसमें जो मसाइल हैं वो आप मीडिया पे देख रहे हैं, और उसके नतीजे में अगले साल क्या होगा कि पीओएल की डिमांड कितनी बढ़ेगी या घटेगी, उन प्राइसेस में क्या चेंज आएगा, उसका इम्पैक्ट बजट पे क्या पड़ेगा,
अब ज़ाहिर है फ्यूल की प्राइसेस में सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड हुई है बाद में। तो अगर अगले साल वो डाउनवर्ड प्राइस रही और इम्पोर्टेड प्राइस कम रहे तो इम्पोर्ट साइड के ऊपर जो कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स है वो अफेक्ट करेगी अच्छी खासी गवर्नमेंट की। और अगर गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल टुवर्ड्स सेल्स टैक्स ऑन फ्यूल प्रोडक्ट्स और उसका इम्पैक्ट पूरे बजट के ऊपर पड़ेगा। अब जाहिर है इन सारी चीज़ों के नतीजे में और चीज़ों के नतीजे में अब जाहिर है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि इनकम टैक्स प्रॉपरली उसकी टैक्सेशन हो। जो कोई मटेरियल चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा, रेशियोज की बात करें तो वो भी मटेरियल चेंज नज़र नहीं आ रहा कि इनकम टैक्स की तरफ उन्होंने फोकस किया हो, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ फोकस किया हो। तो इसलिए ये की चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के लिए कि किस तरह से होता है। अगर हम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन सेल्स टैक्स की बात करें तो रिलायबल सोर्सेज से कुछ नंबर्स मिले हैं और कुछ ज़ाहिर है मुख्तलिफ पेपर्स में कुछ चीज़ें आती हैं उसके बेस के ऊपर ये नंबर्स हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन लास्ट 3 years 196,000, 208,000 और 220,000, just increase of 6% and 5% in last 2 years based on the available figures। और इन्हीं नंबर्स यही नंबर इंक्रीज होके 2019 में 232 हो गए। और अगर हम इनको भी ब्रेक करें, टोटल 147 के रिटर्न का ब्रेकअप मिल सका उसके बेस पे तो नील फाइलर 44,000, नल फाइलर जिनकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई है वो 61,000 और एक्चुअल जो पेयर है बॉटम लाइन इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट के नतीजे में वो सिर्फ 42,000 है। तो इस तरह से 147,000 का ब्रेकअप मिल सका है। और उस लिहाज से अगर हम बात करें तो अगर हम इनकम टैक्स की इसी तरह से बात करें तो उसके ऊपर ज़ाहिर है जो एमएनएसटी आई थी रिसेंटली उस पर 2.3 मिलियन की फिगर थी और आज टीवी के ऊपर मैंने दावा किया था कि ये नंबर्स 4 मिलियन से ज़्यादा हैं एक्चुअली। और ज़ाहिर है इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से नंबर्स आ रहे हैं वो 3.1 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं जो कि मेरी हम्बल राय में इट विल बी मोर देन दैट। और गैस कंज्यूमर को मिला लें तो इट विल बी अराउंड 4 मिलियन। और आज से अक्टूबर में या अगस्त में प्रोग्राम हुआ था 2019 में, मैंने ट्रेडर्स के साथ जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम में आज टीवी पे कहा था कि 4 मिलियन गवर्नमेंट के पास टैक्स पेयर इनकम टैक्स के होने चाहिए। और अगर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर के इलेक्ट्रिक के पास और बापदापा के पास और बाकी लोगों के पास इतने सारे हैं तो ये सारे लोग अगर इनके पास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर है तो इंडस्ट्रियल तो सारे के सारे रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स होने चाहिए और कमर्शियल कंज्यूमर भी काफ़ी हद तक, सिवाय इसके कि जो ट्रेडर लेवल है उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमर्शियल कंज्यूमर में अगर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है उनको भी होना है और जो रिटेलर का जो टियर 1 है उनको भी होना है। लेकिन अगर सिर्फ जो है उनके अंदर से अगर रियली 43,000 लोग ऐसे हैं जो सेल्स टैक्स पे करते हैं तो आप खुद सोचें कि ये बजट कैसे होगा। ये बजट सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि गवर्नमेंट फोकस करे इन दो एरिया के ऊपर। और पार्टली इस बजट में 2-3 जगहों के ऊपर हमें नजर आया है कि इस एरिया को फोकस किया जाएगा और कुछ अरसे तक प्रोफाइल लेना है और दीगर चीज़ें अपडेट करनी है। और उसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आईकैप की थी कि ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो हों और जो लोग रजिस्टर्ड हैं इन एज ए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, एज ए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर, उनको फोकस किया जाए टू ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस एंड टू रिलीव द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विच इज़ ऑलरेडी इन अ टैक्स नेट। और उम्मीद है अल्लाह करे इसी जानिब गवर्नमेंट आगे बढ़े। और अगर इस जानिब नहीं बढ़ी तो फिर अनफॉर्चुनेटली जिनकी असेसमेंट होंगी वो बहुत बुरी असेसमेंट होंगी, जैसे टैक्स ईयर 2014 की असेसमेंट के सिलसिले में जो कि इस वक्त टाइम बार की बाउंड्री के ऊपर है। आज हम अपनी चूँकि कोई कमेंट्री सर्विस है उसमें कोई कमेंट्री हमने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर देखा कि जिसमें नोटिस इशू हुआ है अर्ली जून का, जिसमें ड्यू डेट ऑफ हियरिंग है 29 जून और असेसमेंट टाइम बार हो रही है 30 जून को। और वो मैटर लाहौर हाईकोर्ट में गया और लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। इसी तरह से अब ये जल्दी में असेसमेंट अगर पास होती तो मसाइल पैदा होते। तो पाकिस्तान टैक्स बार ने लिखा
कि 214A में एक्सटेंशन दी जाए, तो FBR ने बगैर PTB का लेटर रखे उन्होंने 5 एरिया में उन्होंने एक्सटेंशन दे दी, जिसके ऊपर अब लॉयर और सीनियर एडवोकेट्स कमेंट्स दे रहे हैं कि टैक्स पेयर ये केस जीत जाएंगे, इसलिए कि लॉ में अगर दिया हुआ है कैटेगोरिकल स्टेटमेंट के मैंडेटरी टाइम बार दिया हुआ है पीरियड, तो FBR जो है वो 214A में या सेक्शन 74 में या फेडरल एक्साइज के रेलेवेंट सेक्शन में एक्सटेंशन नहीं दे सकती। अब ये सारे वो मसाइल हैं जो इस साल असेसमेंट में आपको भुगतने हो सकते हैं। और खुद इमेजिन करें कि अगर 2014 की असेसमेंट 6 साल के बाद अब जाके हो रही है, तो कितने साल के एक साथ असेसमेंट हो सकते हैं अगर गॉड फॉरबिड ब्रॉडनिंग ना हो सकी तो। इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो ये कि आपकी जितनी भी अमेंडमेंट ये हुई है अबाउट 250+ अमेंडमेंट इन फेडरल लॉ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। इसी तरह से प्रोविंशियल लॉ में भी KPK के बजट में सरप्लस है और सिंध के बजट में बिल का पार्ट नहीं है, जैसे असफाक साहब ने भी बताया था कि सिंध सेल्स टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है जिसकी तफसील जो है हमें भी रिलायबल सोर्स से पता चली। और मुश्ताक काज़मी साहब जो हैं उन्होंने भी क्लियरली ICAP के वर्कशॉप में कहा कि उन्होंने सिंध सेल्स टैक्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं की। बलूचिस्तान के सेल्स टैक्स में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अमेंडमेंट्स हैं, पंजाब में भी हैं, KPK में भी हैं, उनके बजट में भी जाहिर है सरप्लस और चीज़ें हैं बहुत सारी जिसको समझना लाजमी है। तो इसलिए वर्कशॉप अटेंड करना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप हर चीज़ में इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, हम जो वर्कशॉप करते हैं जिसकी वजह से अशफाक साहब ने टैक्स एक्सीलेंस वर्कशॉप की तारीफ की, उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास ग्रीन सिग्नल मौजूद है बिग 4 की तरफ से, अशफाक साहब की तरफ से, और इसके अलावा 1-2 मिड लेवल फर्म्स की तरफ से, कि हम उनके जो कमेंट्रीज हैं वो पब्लिकली सर्कुलेट भी करते हैं हमारे सब्सक्राइबर को, वैल्यूएबल सब्सक्राइबर को, और उनकी तमाम कमेंट्रीज को हम एनालाइज करते हैं। उनमें से जो हमें सबसे अच्छी कमेंट्री लगती है, ईच इंडिविजुअल पॉइंट में अलग अलग एनालिसिस करते हैं विद देयर ड्यू परमिशन, और उसके बाद अपना कमेंट्स पब्लिकली शेयर नहीं करते, सिर्फ हमारे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स को शेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स जो है वो खुशी से अटेंड करते हैं, और वो मटेरियल हम उनको बाउंड कर देते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और से शेयर भी नहीं करते। हालांकि सिर्फ हम जानते हैं और अल्लाह जानता है इनके दरमियान में कि उन्होंने किस हद तक शेयर किया। वो अपनी एंटिटी में सिर्फ शेयर कर सकते हैं, बाकी एंटिटी के अलावा आउटसाइडर से शेयर नहीं कर सकते। ये हमने कॉपी, और इसी तरह से जाहिर है चूँकि हमने हमारे वर्कशॉप में बिग 4 के टैक्स के टॉपमैन होते हैं, अशफाक साहब भी होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मेंबर टैक्स पॉलिसी भी इस वर्कशॉप में टू ग्रेस द ओकेजन मौजूद हो, ताकि पूरे 2 दिन का ये प्रोग्राम है कि जिसमें पहले दिन हम इनकम टैक्स की तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और दूसरे दिन इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें सेल्स टैक्स और 3 प्रोविंशियल लॉ डिस्कस करेंगे, एज वेल एज उसी दिन पैनल डिस्कशन होगा इनकम टैक्स का भी और सेल्स टैक्स का भी। और हमने चार्जेस बहुत नॉमिनल रखे हैं ताकि मैक्सिमम लोग अटेंड कर सकें इसको। और आज तक जितने भी हमने इन द पास्ट प्रोग्राम किए हैं इसमें सबसे नॉमिनल चार्जेस इस दफ़ा रखे हैं, ताकि इस कोविड की सिचुएशन में आप घर बैठे, ऑफिस बैठे, अपनी जहाँ से चाहें ये इजीली अटेंड कर सकें, इंक्लूडिंग मोबाइल से ये अपने बिस्तर पे लेटे हुए अटेंड कर सकें। लेकिन नेचुरली बिस्तर पे लेटे हुए एजुकेशन टेक्निकली हासिल नहीं की जा सकती, शैतान आपको सलाह दे। फिर आगे चलते हैं। एक सवाल पैदा ये होता है कि जितने भी सेमिनार आपने अटेंड किए हैं या अर्लियर ईयर के सेमिनार आपने अटेंड किए हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ज़ाती तौर के ऊपर ICAP का प्रोग्राम अटेंड किया, मैंने ज़ाती तौर पे और वर्कशॉप्स बहुत सारे अटेंड किए हैं, पाकिस्तान टैक्स बार का इस साल अटेंड किया है। लेकिन नेचुरली उनकी अपनी टाइम लिमिटेशंस होती हैं। 15-20 मिनट वो प्रेजेंटर को प्रैक्टिकली दे सकते हैं, एक प्रेजेंटर को। उसके बाद Q&A में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसको वो ले सकते हैं। फैकल्टी उनके पास होती है जिनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। पब्लिक के जो क्वेश्चन होते हैं उनके पास बहुत सारे होते हैं, इन हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस उनके पास आते हैं। लेकिन वेयर
प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनकी माजरत वो हमेशा करते हैं कि उनके 100% सवाल के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वर्कशॉप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99% हम लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। पर देयर इज ऑलवेज अ चांस कि 1% लोग आउटसाइड दी वर्कशॉप चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का भी जवाब दो। तो नेचुरली टाइम लिमिटेशन की वजह से हम सिर्फ उन क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं कर सकते जो फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड न हो। फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको हम एड्रेस करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं मुझे 0 लेवल से ये सेक्शन समझा दो, तो नेचुरली हमारे वर्कशॉप में डायरेक्टर लेवल के लोग, हमारे वर्कशॉप में CFO लेवल के लोग, हमारे वर्कशॉप में टैक्स मैनेजर लेवल के लोग होते हैं। तो नेचुरली अगर हमें 0 लेवल से हम समझाएंगे उनको एक एक सेक्शन, तो इट इज़ नेवर एडवाइजेबल। तो इसलिए हम उनको सजेस्ट नहीं करते जिनको लॉ ना आता हो। हमारा वर्कशॉप ये हाई लेवल वर्कशॉप है। जिस तरह से आज के प्रोग्राम में बड़े एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं और इंक्लूडिंग मेरे लिए सरप्राइज था हमारे इस प्रोग्राम में अशफाकुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया, इसलिए मैंने उनसे टेलीफोन पर रिक्वेस्ट की कि विल ही बी एबल टू शेयर फ्यू मिनट्स। मुझे अंदाज़ा था उनके कीमती टाइम का कि वो एक जगह वेटिंग टाइम में थे और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था थ्रू हिज मोबाइल। और जब वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वहाँ किसी से रिक्वेस्ट की और उनके लैपटॉप से इस्लामाबाद से कनेक्ट हुए, दो ही इज बेस्ड इन कराची। तो ये उन्होंने इम्पोर्टेंट दी। अब सवाल हमारी कोशिश ये होगी कि आपके 100% क्वेश्चन नहीं तो 99% क्वेश्चन के जवाब इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह दें। और आई वुड लव कि आज के प्रोग्राम में भी आपके क्वेश्चन के जवाब दे सकूँ मैं। अब जाहिर है आपको जाहिर है वैसे ज़्यादा जितने भी सेमिनार होते हैं उनकी टाइम मजबूरी होती है, हमारी टाइम मजबूरी नहीं है। आपको हैरत होगी कि जब हमने 3 डेज वर्कशॉप किया तो हमने इनकम टैक्स का वर्कशॉप कुछ लोग पार्टिसिपेंट ने शामिल होने में देर कर दी, इसलिए हमने 5 की बजाय 5:30 बजे ख़त्म किया। हमने शुरू किया 9 की बजाय शायद 9:45 बजे। इसके बाद हमने सेल्स एक्स का वर्कशॉप में भी थोड़ा वेटिंग टाइम रखा ताकि सारे लोग मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें। और वो वर्कशॉप हमने तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे पहले तमाम लोगों को के क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने के बाद कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद हमने प्रोविंशियल सेल्स एक्स का वर्कशॉप किया, वो भी हमने 3-4 घंटे या 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले तमाम लोगों को सेटिस्फाई उनके तमाम क्वेश्चंस पे सेटिस्फाई करने के बाद हमने कंप्लीट किया। इस तरह से एक्सेप्ट फॉर 1 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन था वो हमने माजरत की, बाकी तमाम 100% क्वेश्चन को एक्सेप्ट फॉर दैट 1 क्वेश्चन हमने इन 3 दिन सारे प्रोग्राम को कवर किया। इसीलिए हमने फिर सोचा कि ये 3 दिन की बजाय 2 दिन में कर देते हैं और पैनलिस्ट को भी इस प्रोग्राम में शामिल इंशाल्लाह करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है। और ज़ाहिर है पैनलिस्ट उस सूरत में जो है शामिल हो सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर हमारे पास हो। अगर नॉर्मली अगर 20 लोग होते हैं तो हम 1-2 पैनलिस्ट को ले आते हैं, अगर 30 होते हैं तो 3 या 4 को लाने की कोशिश करते हैं। और अगर टोटल 40+ अटेंडेंस होती है तो 4, 5, 6 को लाने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हमने कोशिश की और हम काफ़ी हद तक इस में कामयाब हो गए कि इस तरफ आगे ले जा सकें। लेकिन जाहिर है जब लोगों के क्वेश्चंस ही नहीं थे तो पैनलिस्ट से फिर हमने कहा कि ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो इसलिए पैनलिस्ट की वो एग्री थे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर हमने उनको तकलीफ नहीं दी। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा नंबर्स होंगे और आप लोग रजिस्टर इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए और इस प्रोग्राम को जो फ्लायर आपको मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आज भी हम देखेंगे जो कुछ भी हम कर सकें। इसके बाद जो है अब ज़ाहिर है जो इशू इससे कनेक्टेड है कि टैक्स सिस्टम में क्या मॉडिफिकेशन होगा और आइंदा 2-3 सालों में कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हम फील करते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कि यहाँ ये अमेंडमेंट आई है 50 मिलियन की लिमिट, तो ये इस मिलियन की लिमिट में क्या चेंज आइंदा आ सकता है हमारे परसेप्शन के मुताबिक। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोचा कि ये होगा आइंदा
और उसमें से बहुत सारी चीजें हो गई। IRS के केस में बात करें, अमेंडमेंट के बेस में बात करें, जाहिर है बेस्ड ऑन हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट लेवल वी डोंट से कि इसने कहा या उसने कहा, लेकिन आदमी को दूर से नजर आ रहा होता है। Excuse me. लेकिन आदमी को दूर से नजर आ रहा होता है इस एंगल से कि क्या होने वाला है, और आपकी नॉलेज अपडेशन उस लिहाज से कितनी होनी चाहिए इन नॉट ओनली दीज अबाउट 350 अमेंडमेंट्स। और 350 अमेंडमेंट्स को आप मिनट वाइज बात करें तो अपेरेंटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दोज, लेकिन हम अपना कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल देते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि पूजे में बंद करके बयान करना अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है आपकी दुआओं से, और पिछले 6 साल से कामयाबी से ये प्रोग्राम करने का तजुर्बा है, और वॉलंटरीली अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से ये प्रोग्राम ICMA के लेवल के ऊपर, व्हेन आई वाज इन फेगसन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के लेवल के ऊपर, और इसके अलावा रिसेंटली लास्ट ईयर ACCA के फोरम के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो अंदाज़ा है कि हाउ टू हैंडल द शो। इन एडिशन टू दैट ज़ाहिर आज TV पे गए हैं रिसेंटली, आई हैव बीन आस्क्ड कि मैं न्यूज़ 1 पे आऊँ, फिर यस्टरडे आई वाज आस्क्ड मैं डाउन TV पे आऊँ। उसकी वजह सिंपल सी है कि दे लाइक के जो थोड़ी देर में बात अपनी कम्युनिकेट कर सके मासेस तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वर्कशॉप में इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अपना मैसेज करते हैं, और इसी तजर्बे की बुनियाद के ऊपर लोग हमारे प्रोग्राम में आना पसंद करते हैं। और इसीलिए अगर आप हमारा जो kaswati.com.pk के ऊपर देखना चाहें तो शब्बर साहब भी ऐसे वर्कशॉप में हमारे आ चुके हैं, जो पोस्ट बजट वर्कशॉप हमारे इन द पास्ट हुए हैं, और वो वीडियो क्लिपिंग आप kaswati.com.pk में ड्रैग डाउन करेंगे तो उसमें शब्बर साहब की स्पीच मौजूद है, उसके अंदर आबिद शाबान साहब की स्पीच मौजूद है, उसके अंदर चीफ कमिश्नर जो कि ट्रिब्यूनल के मेंबर कर रहे हैं उनकी स्पीच, हमारी क्विक कमेंट्री के बारे में 2-3 मिनट की क्लिपिंग है। ये वो उस जमाने की बात है जब उस लेवल के लोग भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, और इंशाल्लाह जो फ्लायर के ऊपर भी जो लोग हैं इस दफ़ा वो भी ज़ाहिर है इस दफ़ा आने के लिए, उनमें से जिनको भी हमने दावत दी उसमें से मेजॉरिटी आने के लिए तैयार थी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कुछ लोग अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने माजरत की थी। अब ज़ाहिर है आपके लिए अहम क्यों है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ आई सॉ फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटी, आई सॉ फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज, आई सॉ फ्रॉम रेलेवेंट प्रोफेशंस, हर किस्म के लोग आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब ज़ाहिर है उनके अकाउंट्स पे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, टैक्स के प्रोविजन पास्ट, करंट और फ्यूचर पे कितना पड़ेगा इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए, और आपके इसी तरह से फ्यूचर बजट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और मैंने ये देखी है अच्छी चीज़ कि मल्टीनेशनल कंपनियां और जो स्टेट कंपनियां हैं वो बजट की एनालिसिस करती हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ उन तमाम लोगों से माजरत करूंगा कि वो 100% अमेंडमेंट को फोकस शायद नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो रिलाई कर रहे होते हैं बिग 4 की कमेंट्रीज के पर भी नहीं, किसी 1-2 कमेंट्री के ऊपर वो रिलाई करते हैं, और जाहिर है उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है, और वो भी कुछ सेंसिटिव अमेंडमेंट्स को कवर नहीं कर सकते। बीइंग अ पार्ट ऑफ those teams or knowing how they work on it, उनके अपने वर्क प्रेशर, उनके टाइम प्रेशर, 24-24 घंटे हमने काम किया है कमेंट्री बनाने के ऊपर, उस सिचुएशन में दिमाग कितना काम करता है हजरत इंसान का, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमें चूंकि सुकून से हम ये सारा काम करते हैं, हमारे साथ तकरीबन 10 वॉलंटियर्स काम करते हैं इन एडिशन टू आवर ओन टीम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वॉलंटियर्स भी सैलरी रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीस टू 5 लाख रुपीस, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं हमारे साथ। वो वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, उनकी कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, एंड दे वर्क फॉर अस हैप्पीली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। हम उनसे बेनिफिट उठाते हैं, वो हमसे बेनिफिट उठाते हैं, एंड इन दिस मैनर हमारा क्वालिटी ऑफ वर्कशॉप जो है
वो एज कम्पेयर टू सेमिनार यू विल फाइंड इट एब्सोल्युटली डिफरेंट। उसकी वजह है कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेमिनार करने वालों के पास लिमिटेशंस होती हैं। फिर इसके साथ साथ आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी इंक्रीज होगी और कितनी डिक्रीज होगी। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमने जून 2019 के बजट में कह दिया था कि कपड़े की प्राइस 40 से 50% बढ़ जाएगी, और न्यूमेरिकली उनको कैलकुलेट करके दिखाया था कि कपड़े की प्राइस इस तरह से बढ़ जाएगी, और अगर आप 2 साल के कपड़े खरीद सकते हैं, अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो 2 साल के कपड़े खरीद लें। और मैंने उनसे मजाक किया था उस वक्त भी कि खवातीन तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगी कि 2 साल के कपड़े खरीद लें, लेकिन मर्द की फैशन चेंज नहीं होती, मर्द अपने कपड़े खरीद लें। और सारे लोग हंसे थे। इसी तरह से जब मैंने ACCA का प्रोग्राम किया तो ACCA के प्रोग्राम में ओपनली मेरे साथ टेक्सटाइल सेक्टर के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि शब्बर साहब ने कहा है कि आउट ऑफ दिस 4 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन तो हम टेक्सटाइल सेक्टर से पकड़ लेंगे, उन्होंने क्लेम किया। और उन्होंने नंबर कहा कि इतनी अमाउंट इन्वॉल्व है जो टेक्सटाइल सेक्टर से आएगी। तो गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा कि अगर 4 ट्रिलियन अचीव कर लिए हैं जिसमें से 1 ट्रिलियन टेक्सटाइल सेक्टर से हैं, जो शब्बर साहब ने दावा किया था कि 1 ट्रिलियन तो मैं यहाँ से ले लूंगा नेट पोजीशन में, और वो ही जाहिर हुआ है कि उनका रिफंड कुछ अभी भी बचा हुआ। और यही वो, मैं APTMA के जिम्मेदार का नाम नहीं लेना चाहूंगा जो ACCA के प्रोग्राम में थे, उन्होंने नंबर कैलकुलेट किए थे और मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया था कि देखें अगर मैं 5% इफेक्टिव रेट लगाऊं कि जो उनके इनपुट डिसअलाउंसेस होते हैं, जो नंबर्स आप बता रहे हैं उसके ऊपर मैं 5% लगा दूं तो इट्स वर्क्स आउट टू मोर देन 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से आया। इसके अलावा मैंने उनको कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी थी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कि देखिए इन जगहों पे स्पेसिफिकली इंक्रीज आएगा या माइनर डिक्रीज आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने देखा, हर फोरम ने देखा, अवाम नास ने देखा कि चीज़ों में कितनी महंगाई हुई, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कोविड की सिचुएशन में फार्मा सेक्टर और कुछ सेक्टर में महंगाई हुई, बाकी फूड सेक्टर में कमी हुई, इसलिए कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। ठीक है, लेकिन अब इस बजट के नतीजे में जब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 4.9 ट्रिलियन यानी तकरीबन 27% इजाफा होगा, तो इसकी कहाँ से जाएगा ये पैसा? ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस 27% ऑन एन एग्रीगेट बेसिस बढ़ेगी, या अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया गया तो क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर से वो पैसे बटोरेगा कि नहीं बटोरेगा? विथहोल्डिंग टैक्स रिजीम में अगर डबल टैक्स लगता है तो वो आपसे बटोरते हैं कि किसी और से बटोरते हैं? अनरजिस्टर्ड से आप डीलिंग करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं कि नहीं लेते? ये नॉन फिनोमिना है, और जाहिर है इसीलिए हर लेवल पे ये डिस्कस होता है। इसीलिए इस दफा एनोमली कमेटी के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी भी बनी हुई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दीगर लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा सप्लायर आपको डॉज देता है बजट के नाम पे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता होगा कि आपकी HS कोड वाली आइटम, आपकी बाइंग वाली आइटम में से कौन सी पर्टिकुलर आइटम है जिसकी रियली कॉस्ट बढ़ रही है, और आपका परचेज डिपार्टमेंट को क्या स्पेसिफिकली पता है, तो अगर टैक्स मैनेजर वहाँ नहीं आएगा, अगर वहाँ CFO नहीं आएगा, अगर परचेज डिपार्टमेंट का कोई की पर्सन अगर ज़रूरत आप समझते हैं कि नहीं आएगा, इसीलिए हम ये काम ये करते हैं आपकी आसानी के लिए कि अगर आप एक पर्सन को रजिस्टर करवाते हैं तो नॉर्मल रेट अप्लाई होता है, और अगर आप पेमेंट कर देते हैं, टुडे इज द लास्ट डेट टू अवेल अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो सिर्फ 2 दिन के 12,000 रुपये हैं और ओनली 12,000, और एक दिन के अप्लाई करें तो वो ज़ाहिर है प्रैक्टिकली ऑन एन एवरेज ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सेकंड डे ज़्यादा है कि सेकंड डे पैनलिस्ट भी हैं, लेकिन बल्क डिस्काउंट के साथ वो ये रेट पड़ता है। और अगर आप एक दिन अवेल करते हैं, लेकिन अगर आप 3 फ्रॉम द सेम एंटिटी आते हैं तो डिस्काउंट हम 10% देते हैं, अगर 5 फ्रॉम द सेम एंटिटी आते हैं तो हम डिस्काउंट 20% देते हैं, ताकि आपके CFO, आपके डायरेक्टर, आपके एंटिटी के की कोर पर्सन, आपके सेठ में से लोग, आपके मे बी पॉसिबल कोर पर्सन जो 2-3 डिपार्टमेंट के हेड्स हों वो आ जाएं, ताकि सप्लायर की पूरी कहानी पता चले। इसी तरह से एग्जैक्टली ज़ाहिर है इसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और स्पेशली कोविड की सिचुएशन में इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है
कि हम भी परेशान हैं अपने बिजनेस के लिए, आप भी परेशान होंगे अपने बिजनेस के लिए। इस सिचुएशन में आपने बजट के नाम पे बगैर बजट की एनालिसिस के, ईच इंडिविजुअल आइटम की एनालिसिस के, अगर आपने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, चाहे आप प्रोफेशन में हो, इंडस्ट्री में हो या सर्विस सेक्टर में हो, तीनों एरिया के लोगों ने अगर अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, तो उस सूरत में आप कॉम्पिटिटिवली आउट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कॉम्पिटिटर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो मार्केट खा जाएगा और मार्केट आपसे ले जाएगा, और जब एक दफा वो मार्केट ले जाएगा तो वो फ्यूचर ईयर्स भी अफेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जाहिर है उस पूरी कहानी के नतीजे में अगर आपने पिछले साल बजट बनाया था, इस साल का या अगले सालों का साथ में, जैसे हम एक क्लाइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी 5 साल फ्यूचर के बजट्स बनाए और उसमें कुछ एरिया उन्होंने हमसे शेयर किया इसलिए हम उस एडवाइजरी पार्ट का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से दिस इज अवर एडवाइजरी एरिया कि वी डोंट विजिट टैक्स ऑफिस, we have sufficient time for research and our quick commentary service as well as our updating service। तो इसीलिए हमारी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह, और कमेंट्री तो खैर प्रैक्टिकली देयर इज नन एक्सेप्ट वन जो रेगुलर बेसिस के ऊपर सफिशिएंट क्वांटिटी में कमेंट्री इशू करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और डेली बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स की, कंपनी लॉ की और कस्टम्स की, और जो हमने अभी रिसेंटली शुरू की और बैंकिंग एंड फाइनेंस की कमेंट्री इशू करते हैं। इसके अलावा और एरियाज हैं जिसमें इन एरियाज में भी और दीगर एरिया में हमारी अपडेटिंग सर्विसेज हैं एट अ वेरी नॉमिनल चार्जेस, और मुख्तलिफ वक्त में हमारे डिस्काउंट पॉलिसी भी चलती हैं, तो उसकी डिटेल्स हमारी ऑफिस से आप मालूम कर सकते हैं। इट्स गुड दैट मैक्सिमम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और मैं थोड़ी देर में चैट बॉक्स भी खोल लूँगा अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हों। मुझे सिर्फ जस्ट 30 सेकेंड्स दीजिएगा कि मैं एक चीज मूविंग अहेड। अच्छा, अब ज़ाहिर है इस दफ़ा सैलरी टैक्सेशन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, ये हमने फ्यूचर ईयर के रखा है। अब ज़ाहिर है आईटी का मसला बहुत बड़ा है, लेकिन आईटी के डिपार्टमेंट के लोगों को ज़रूरत नहीं है इस वर्कशॉप में आने की, मसला नहीं है, लेकिन नेचुरली मसला ही है इसके अंदर। बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे अशफाक उल्लाह साहब ने भी कहा कि फाइनेंस एक्ट उसूली तौर के ऊपर ज़ाहिर है यस्टरडे साइन हो चुका होना चाहिए था, पर उम्मीद है वो साइन हो चुका होगा, जैसे कि लीगली वो आज साइन हो नहीं सकता, इससे कि उसकी इफेक्टिवनेस आज से है। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस कि तकरीबन हर साल जो फाइनेंस एक्ट की गजेटेड कॉपी जो है वो बड़ी देर से मिलती है, और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आई एम अ मेंबर ऑफ सेवरल व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ अ हाई लेवल प्रोफेशनल पीपल, और मैं नाम नहीं लूँगा कितनी ज़्यादा जो है वो ग्रुप्स का मैं मेंबर हूँ कि मेरे पास 1000 से ज़्यादा डेली व्हाट्सएप आते हैं, आई कांट सी, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं वो आई हैड अ चांस टू सी, और वहाँ पर जो कॉपियाँ सर्कुलेट हुई हैं फाइनेंस बिल की, टू बी वेटेड बाय लीगल पर्सन, टू बी वेटेड बाय लीगल कमेटी। और बस मैं 1-2 मिनट में ख़त्म करूँगा, जैसे कि अजान हो गई है, और जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस होंगे या जिन्होंने रेज हैंड्स किए हैं उसको मैं शायद टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से न ले सकूँ, तो इसलिए उनको मैं, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मेरे बहुत सारे लोगों के पास टेलीफोन नंबर्स हैं, तो वो मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, या आई वुड लव कि वो पूछ लें टेलीफोन, ये वो हमें ईमेल भेज दें। मेरा ईमेल एड्रेस मैं आखिरी में बता देता हूँ। इसके बाद ये हमने नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट किए थे मुख्तलिफ कमेंट्रीज में, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर ओवर 1000 पेजेस का आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली
कि हमने जब सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद प्रिंट्स लेके उसको एनालाइज किया तो दोज वर अबाउट 1000 पेज, ओवर 1000 पेजेस। और जाहिर है हमने 2-3 रिम खरीदे टू प्रिंट दैट एंड टू, फिर उसके बाद वर्टिकल रीडिंग मेथड होता है, अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि कुछ एरिया को हमने वर्टिकल रीडिंग मेथड के तहत पढ़ा, कुछ को हॉरिजॉन्टल रीडिंग के तहत पढ़ा। और आपके लिए जो मटेरियल तैयार किया है वो बेस्ट पॉसिबल मटेरियल जो है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिग 4 के लोग भी जो वर्कशॉप में आते हैं और जो सीनियर लॉयर्स हैं वो ये मटेरियल लेके जाते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रोविंशियल रेवेन्यूज अथॉरिटीज के लोग खुशी खुशी वो मटेरियल पार्टिसिपेंट पैनलिस्ट भी ले जाते हैं और हमेशा उस मटेरियल की तारीफ करते हैं। और विद दीज वर्ड्स मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नासिर गुलजार साहब मौजूद नजर आए, दीगर लोग नजर आए, लेकिन अजान की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सका। और मैंने अशफाक तौला साहब का आखिर में दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा जो who graced the occasion in the beginning. With these words, I am grateful to all and hope to see you all on 7th on Tuesday or 7th and 9th in our Finance Acts workshop, जिसमें Federal Finance Act और 3 Provincial Finance Acts इंशाल्लाह हम each individual item कवर करेंगे और आपके तमाम सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने हिस्टोरिकली बताया कि 99% के हम तसल्ली बख्श जवाब देंगे और उसके साथ साथ जो आप चाहें पैनलिस्ट से जो हमने बताया वो कंफर्म कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पैनलिस्ट ने इन द पास्ट 99% इफ नॉट 100% हमसे एग्री किया। और जाहिर है दो लोगों का ओपिनियन सेम नहीं हो सकता, विद इन 2 फर्म्स भी सेम ओपिनियन नहीं हो सकता, बिग 4 में भी 2 फर्म्स का ओपिनियन सेम नहीं होता। तो वो चीज़ हम भी फेस करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वी लव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, के सहाबा के दरमियान भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। With these words, thank you very much and अल्लाह हाफिज। उम्मीद है मगरिब की नमाज की अजान हो चुकी है मुख्तलिफ शहरों में भी और कराची में भी। तो ये फ़र्ज़ अहम जिस तरह से नमाज और टैक्स ज़रूरी है, जिस तरह से टैक्स और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस तरह से नमाज भी ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ you all in this COVID situation.